expectation of a teacher is at least student will write a story in 20 to 30 sentences. So this is the expectation of a teacher. So while framing the educational objectives, many a times it is desirable कि हम expected level of learning भी उसमें mention करें. And the last point was हम जब specific objectives या instructional objectives की जो हम बात कर रहे हैं, हम frame करते हैं, we should not use the word know or understand. know और understand जैसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते because they are not expressible. आप उसको express नहीं कर पाएंगे because behavioral change उससे हम नहीं देख पाएंगे. Fine. So इस type के words हम नहीं यूज करते. So I have recapitulated this part. Now see, Sonia. Now, yes sir. जी sir. I will want to speak to them for a few minutes. Sure sir. Sure. Students, this is R.C. Patel here. Whatever you see in this slide, whatever you are able to see in this slide, point number 2nd and 3rd, where it is stated that educational objectives should be stated in behavioral terms and should also have the specification of minimum expected level. Okay, Madam has told that these are the two characteristics and this is very right. Now my question is, why should they be stated in behavioral terms and why there has to be a specification of minimum expected level? अगर ये दो चीज हम ना करें तो क्या होगा? You can show your face also if you want, and if it is technically viable, and then you can answer. पहले तो सबको मेरा प्रश्न समझ में आया. प्रश्न में मैंने ये पूछा कि अगर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बिहेवियरल टर्म्स में नहीं लिखा है एंड उसमें जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है बच्चों का वो नहीं लिखा है तो क्या तकलीफ होगी? What will go wrong? Is the question clear to all of you? Yes sir. Fine. Now try to answer. Try to answer. क्यों ऐसा करना चाहिए हमें? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे सर तो क्या? अगर बिहेवियरल चेंजेस में हम नहीं देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा एज अ टीचर के बच्चे लर्न कर रहे हैं कि नहीं? जब तक वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनके बिहेवियर में चेंज नहीं होगा, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट के अंदर कितनी लर्निंग हुई है. आपको क्यों पता करना है? सर ताकि हम इम्प्रूव कर सके. सर वी कैन एक्चुअली कंपेयर चाइल्ड और वो कितना ग्रास्प कर पा रहा है, तो वो पता करने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट करने पड़ेंगे. उसके लिए यस. This was, I think, Yashi. नो सर, दिस शोभिता. Okay. Now anybody else? और आप हैं ना, you can answer. एक मिनट पहले मुझे let me clarify one thing. You can answer in Gujarati, Hindi, English. Let language be not the barrier. समझ में आया? भाषा के कारण आप जवाब ना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप कोई भी भाषा में जवाब दो. I will translate it for the rest of the group. हाँ बोलो बेटा. Who was saying? Sir, Yashi here. Yeah. Please go ahead. Learning objective should be performance based, then only will compare and should be in behavioral term. And the fourth point is that level of learning or performance, it is mentioned because then only we can clarify to the students that we want this part from you, at maximum this should we want. But इससे तो ये नहीं होगा कि हम बच्चे की क्रिएटिविटी को मार देंगे. बच्चा अपने तरफ से कुछ लिखना चाहता है, बट हमने बोला नहीं इतना ही लिखो. बट सर फिर हमें मार्क्स वेटेज भी देखना है ना. ओके, चलो. एनीबडी एल्स? Sir, I want to add something. You can also show your face if it is technically visible. अगर इंटरनेट कनेक्शन सही है तो चेहरा दिखाओ. Yes, I can see. Actually,
Education is all about developing skills and self-esteem. It's not about only knowing particular thing. So we have to evaluate the whole aspect of a child, like physical, social, emotional, intellectual. That's why we should be that's why the educational objective should be stated in terms of behavioral changes. Okay, fine. Sure. Anybody else? I want to add one thing. My name is Mariam. Yes, please. Should specify expected level. We should specify expected level because a standardization should be maintained all over the area. It shouldn't be like that एक जगह पे ज्यादा पढ़ाई हो रही है या थोड़े बच्चे बहुत ही पुअर रह रहे हैं, इसलिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेशन रहने के लिए हम एक्सपेक्टेड लेवल उसे मेंटेन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रहे। चलो गुड, काफी अच्छी कोशिश की आप लोगों ने। अब लेट अस टेक फर्स्ट पॉइंट कि अगर बिहेवियरल में हमने नहीं लिखा है तो क्या तकलीफ होगी। पहले तो वी शुड रिमेंबर, आप सब लोगों ने एक पॉइंट मिस किया या शायद इनडायरेक्टली बताया है, they are to be stated in behavioral terms and also there has to be minimum specification of minimum expected level only for the purpose of evaluation। समझो, क्योंकि हमें बच्चों को इवेल्युएट करना है, हमें उनका मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन में जैसे अभी मरियम ने भी आखिरी में बताया कि इन ऑर्डर टू एंश्योर कि बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे, हम कहीं बायस ना हो, किसी को ज्यादा मार्क दे दे किसी को कम मार्क दे दे, वो ना हो, इसी के कारण ये होना जरूरी है। अब जैसे कि पहला वाला, लेट अस टेक फर्स्ट पॉइंट कि इफ इट इज नॉट स्टेटेड इन बिहेवियरल टर्म्स हाउ विल यू इवेल्युएट। जैसे कि अभी मैं आप सबको ऐसा बोलूं, मुझे प्लेन चलाना आता है, आप कैसे जानोगे मैं प्लेन चला सकता हूं या नहीं चला सकता हूं। मुझे गाड़ी चलाना आता है, मुझे कंप्यूटर रिपेयर करना आता है, मुझे सब्जी बनाना आता है, मुझे कपड़े स्टिचिंग करना आता है, मैं ये सब चीज बोलूं। नाउ हाउ विल यू इवेल्युएट वेदर आई नो इट और नॉट। समझे आप? इफ आई से दैट आई नो टू ड्राइव दिस, आई नो टू ड्राइव दिस, तो अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर हमें मूल्यांकन नहीं करना है, मूल्यांकन नहीं करना है तो कोई इश्यू नहीं, वो बिहेवियरल टर्म्स में हो या ना हो। बट क्योंकि आपको मूल्यांकन करना है कि आरसी पटेल सर प्लेन चला सकते हैं या नहीं चला सकते, तो इसीलिए वो बिहेवियरल टर्म्स में होना चाहिए कि जब वो चलाए तब आप ऑब्जर्व करोगे। बिहेवियरल का मतलब ये भी है कि इट शुड बी ऑब्जर्वेबल। यस सर। ऑब्जर्वेबल मीन्स कि जिसका अवलोकन हो सके। ठीक है, जैसे कि हम साइंस लेबोरेटरी में जाए, मैं बोलूं कि मुझे तो सभी एक्सपेरिमेंट करना आता है, सर आई नो ऑल द एक्सपेरिमेंट, और सर को कैसे मालूम पड़ेगा? आप जब वो एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि आपका मूल्यांकन है। जस्ट वन सेकंड। मीटिंग चालू છે, ઘણીવાર બીજી એમએનના છોકરાઓ જો મીટિંગ છે, સવા 3ની આજુબાજુ ફીટ થઈ છે। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मूल्यांकन करना है इसीलिए जरूरी है ये। जैसे कि वो खाना बनाने वाली हमने एक कंपटीशन रखी हो कि कौन कैसी केक बना सकता है, बाकी तो सबको सब बोले कि आई नो हाउ टू प्रिपेयर केक, पर जब वो बनाएंगे तब हम ऑब्जर्व करेंगे और इसके बाद उनका मूल्यांकन होगा। तो बिकॉज वी वांट टू इवेल्युएट अवर स्टूडेंट्स, the objectives have to be stated in behavioral terms. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now second, हमने behavioral में भी लिख दिया, ठीक है? Fine. अभी हमने behavioral terms में भी लिख दिया। जैसे सोनिया मैडम एग्जांपल बता रही थी कि हमने behavioral terms में भी लिखा, तो my students will be able to write an essay on women empowerment. Okay? Objective कुछ ऐसा है कि students will be able to write an essay on women empowerment। women empowerment करके हमने एक टॉपिक दे दिया, और हम ऐसे लिखते हैं कि students will be able to write, तो बिहेवियरल वाला चीज आ गई ना, कि जब वो लिखेंगे तब आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या तकलीफ होगी? ये ऑब्जेक्टिव सही तरीके से लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा सर।
क्यों क्यों? बिकॉज सर नंबर ऑफ वर्ड लिमिट हमने नहीं दिया है, कुछ जो है बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, कुछ एकदम लॉन्ग में लिखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें देखो क्या होगा, कोई एक जो विमेन एम्पावरमेंट के हर एक एस्पेक्ट के हिस्टोरिकली प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में मीन्स आजादी से पहले विमेन की क्या स्थिति थी, आजादी के बाद क्या थी, गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किया, अभी क्या स्टेटस है अलग अलग रीजन में, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, अलग अलग रीजन में विमेन एम्पावरमेंट की क्या स्थिति है, कोई ये सब चीज डिस्क्राइब करके सब कुछ लिख दे, फाइन। कोई सिर्फ मान लो कि इतना ही लिखे कि गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स थे विमेन एम्पावरमेंट को लेके, कोई ये लिखे कि जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस है उनके क्या एफर्ट्स थे विमेन एम्पावर करने के लिए, सिर्फ उतना ही लिखे। कोई सिर्फ 100 शब्द में लिखे, कोई 5000 शब्द में लिखे, कोई 10,000 शब्दों में लिखे। तो आपको, क्योंकि हमें इवेल्युएट करना है, प्लीज रिमेंबर, अगर इवेल्युएट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम उनको पूरा फ्रीडम दें, क्योंकि निबंध का एक गुजराती शब्द है, यहाँ गुजराती और हिंदी में भी शायद निबंध ही है कि जिसमें कोई बंद ना हो, निबंध, बंद के बिना है, स्टूडेंट को हम पूरा फ्रीडम दे दे कि जो लिखना है वो लिखो। बट ये करने में क्या होगा, मूल्यांकन में तकलीफ होगी, फिर हमारा मूल्यांकन में आप या किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स दे दोगे, किसी को कम दोगे, किसी ने सब कुछ किया है। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ऑब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज रिमेंबर कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ऑब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब फिर मैं असेस करूं, सोनिया मैडम करे, भूमिका मैडम करे, या अन्य कोई मैडम भी उसका असेसमेंट करे, तो अगर ऑब्जेक्टिव इस तरीके से बिल्कुल स्पेसिफाई करके लिखा है तो बच्चे को जितना मार्क मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। Could I clarify? Yes, sir. क्योंकि हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है, इसीलिए these are the two most important characteristic of educational objective, कि जब हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखे तो वो जो बच्चे में बिहेवियर में जो चेंज आने वाला है, बिहेवियरल चेंज, बाकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्किल ये वाला नहीं है। अरे स्किल तो हो सकता है बट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड ये नहीं चलेगा, हमें उसका बिहेवियरल कि जो उसकी वर्तणूक में परिवर्तन हो, जो हम देख सके, उस तरीके से लिखना चाहिए। और हमारी मिनिमम क्या अपेक्षाएं है, मिनिमम, उससे ज्यादा है तो फाइन, उससे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो एब्सोल्युटली फाइन, तो इतना होना जरूरी है। दैट इज हाउ educational objectives should always be stated in terms of behavioral changes, and there also always has to be a specification of expected level of learning or performance. Sonia, now you can go ahead. Okay, thank you, sir. Thank you. Is I audible to the students? Hello? Yes, ma'am. Okay. Now with this discussion, we can say that instructional objectives are specific in nature, they are measurable, they are short term, and they are observable also. Fine. So ये 3-4 चीजें बहुत ध्यान से रखनी है कि आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जब आप फ्रेम करेंगे वो इस तरीके से होने चाहिए ताकि वो स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, short term भी हो. Short term means they should be achieved within a class, okay, and they should be observable in the students' behavior. Okay, I think this discussion helps you a lot in framing the education objectives. Whereas अगर आप general objectives की बात करते हैं तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, कल बात हुई थी थोड़ी कि वो किस टाइप के होने चाहिए. दे माइट बी अचीव्ड within a semester also. Sometimes it may take even the whole year also, it may take even couple of classes also. Fine. So वो long term, उनको long term objectives कहा जाता है because they are attained or they are gained over a long period of time. उनको achieve करने में काफी लंबा समय लगता है, इसीलिए हम उनको general objectives के नाम से जानते हैं. Now, let me try to give you some examples of general objectives. Suppose आप mathematics के class में teaching कर रहे हैं, you might be teaching geometry, you might be teaching calculus, you might be teaching algebra, but एक major objective आपका ये सब पढ़ाने के दौरान एक हो सकता है, students will develop interest in mathematics.
है ना। एक मेजर ऑब्जेक्टिव आपका ये हो सकता है जब आप अलग अलग तरीके की क्लासेस ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे विषयों के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो बच्चों का जो रुझान है, इंटरेस्ट है, वो मैथमेटिक्स में डेवलप हो सके. The second general objectives could be student will know about various types of number systems. फाइन. अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स हैं. सो जब आप मैथमेटिक्स में अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त हो सके. सो दिस इज ऑल्सो अ जनरल ऑब्जेक्टिव. These type of objectives like students may develop a positive attitude towards learning mathematical concepts, है ना. स्टूडेंट्स जो हैं मैथमेटिक्स के क्लासेस के दौरान पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकें टुवर्ड्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लर्निंग, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है. सो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको आप किसमें फॉल करेंगे? दे आर कंसीडर्ड एज general objectives. Fine. They are long term achievement kind of objectives आप बोल सकते हैं. I hope this one or two illustration or few more illustrations we will give you in the next classes. So आप basic distinction कर सकते हैं ये दो टाइप के objectives में. और जब हम lesson plan में लिखते हैं तो कोई भी क्लास लेते हैं तो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स और उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हम जरूर लिखते हैं. इट इज अ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट टू राइट द जनरल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. So this is another thing. Now, okay, I would like to give you some information, I can say, regarding the Bloom's taxonomy. How this Bloom's taxonomy is related with the educational objectives. See, it is given that Bloom's taxonomy was originally published in 1956 by a team of cognitive psychologists at the University of Chicago, and it is named after the committee's chairman Benjamin Bloom. सो बेंजामिन ब्लूम जो थे वो चेयरमैन थे जो एक कमिटी थी, और उस कमिटी के जो ने एक फाइंडिंग्स शो की थी, पब्लिश की थी, जिसको कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं. एंड दिस ये जो इसकी जो मेजर फाइंडिंग्स थी वो यही थी कि जो भी लर्निंग होती है बच्चों में या लोगों के अंदर, वो बेसिकली 3 अलग अलग डोमेन्स में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. सो वो जो 3 अलग अलग डोमेन्स हैं, ये जो 3 अलग अलग कैटेगराइजेशन है, वो फर्स्ट है दैट इज अ कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड इज अफेक्टिव डोमेन, एंड द लास्ट वन इज द साइकोमोटर डोमेन. नाउ लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स अबाउट दिस कि ये तीनों डोमेन्स का मीनिंग क्या है. कॉग्निटिव डोमेन जो है इट डील्स विद द मेंटल स्किल्स और द मेंटल एबिलिटीज, है ना. जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने कोई बुक पढ़ी, उससे आपका जो मेंटल एबिलिटीज में गेन होता है, ये जैसे आपने एल्जेब्रा पढ़ा या ज्योमेट्री पढ़ा या साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा, तो उससे आपकी जो मेंटल एबिलिटीज में एनहेंसमेंट होती है, वो सब आपका किस में आता है? आपके वो कॉग्निटिव डोमेन में ग्रोथ हुई या उसमें इंक्रीमेंट हुआ, आप बोल सकते हैं. सो वो कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है. जबकि हम अफेक्टिव डोमेन की अगर बात करें, इट डील्स विद ग्रोथ इन द फीलिंग्स. आप देखिए जब आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, सो ना केवल आपकी मेंटल एबिलिटीज एनहेंस होती हैं, बल्कि किसी भी व्यक्ति की जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो इमोशंस हैं, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो परसेप्शन है, उसमें भी चेंजेस आते हैं. सो दोज गेन इन दी feelings, emotions or attitude, they deals with the affective domain of the person. Whereas sometimes when you, जैसे सर ने कुछ एग्जाम्पल दिए कि if someone learned how to drive a plane, आप प्लेन को किस तरीके से ड्राइव करते हैं, या आप बाइक किस तरीके से ड्राइव करते हैं, या आप स्विमिंग किस तरीके से सीखते हैं. सो दीज आर द स्किल्स which you need to acquire. So learning जो है वो skill based भी होती है, जो हम physical skills की बात करते हैं यहाँ पर, that is they comes under the psychomotor domain. So evaluation हम majorly अगर हम देखें तो
कॉग्निटिव डोमेन का सबसे ज्यादा इवैल्यूएशन किया जाता है स्कूल्स में, आप देखेंगे, जबकि साइकोमोटर डोमेन का भी इवैल्यूएशन होता है. बट देयर आर वेरी फ्यू मोमेंट्स यू कैन सी दैट वेयर अफेक्टिव डोमेन इज आल्सो बीइंग इवैल्यूएटेड. Nowadays, through some co-curricular activities, affective domains को भी ध्यान में रखा गया है और उसका भी मूल्यांकन होता है. नाउ जो कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की मैं बात कर रही हूँ, इसमें एक आप देखेंगे इन डोमेन्स के अंदर एक हायरार्की है. हायरार्की मींस नीचे से ऊपर की ओर जाने का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता है. जैसे आप जानिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आपको सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन बच्चों को सिखाना है ना. यू वांट टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बिफोर मल्टीप्लिकेशन बच्चों को पहले सिंपल एडिशन पता होना चाहिए, है ना. सो पहले बच्चा एडिशन सीखता है, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन सीखता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन सीखता है ना. सो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्या है, गेन हो रहे हैं. नाउ यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन में आप देखेंगे, पहले जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आप फोर्स के बारे में बच्चे को बताना चाहते हैं, यू वांट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, तो पहले सबसे पहले आप बच्चे को फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बताएंगे कि फोर्स एक्चुअली उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, फोर्स है क्या. फाइन. सो सबसे पहले आप उस बच्चे को डिफाइन करना सिखाएंगे. उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा फोर्स के कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सके, है ना. एक तो हो गया बच्चा सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन ही स्टेट कर पा रहा है या सिर्फ उसकी डेफिनेशन ही लिख पा रहा है. सो दिस इज अ वेरी लोअर लेवल ऑफ थिंग. कई बार आप देखिए बच्चों को आप पूछते हैं, वो डेफिनेशन बता देते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो अपने शब्दों में उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. सो द सेकंड लेवल आप देखेंगे कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा है. द थर्ड लेवल कुड बी उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है कि फोर्स किस टाइप का फोर्स हो सकता है ना, और किन किन टाइप के सिचुएशंस में फोर्स को वो देख सकता है कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है. राइट. सो द नेक्स्ट लेवल इज उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स को वो आइडेंटिफाई कर सके, है ना, और या उसके एग्जांपल्स को वो ठीक से खुद से इलस्ट्रेट कर सके. सो दिस इज इवन मोर हायर लेवल. नाउ इवन इससे भी आगे का एक लेवल हो सकता है कि जहां पर मल्टीपल सिचुएशंस हो, जहां पर अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स मिले हुए हो, वहां पर कहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स आ रहा है. सो इवन इट इज इवन मोर हायर सिचुएशन. जैसे आप कोई यूजुअल आपका डे टू डे लाइफ से प्रॉब्लम आप लेते हैं कि आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो आप किस तरीके से उसको शिफ्ट करें, वहां पर फोर्स कहां पर अप्लाई होता है, आप उसको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो सिचुएशंस है उसमें आप जो आपने स्टडी किया है उसको आप कैसे अप्लाई कर सके और उसको आप कैसे उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सके. सो दैट इज इवन अ मोर हायर लेवल ऑफ लर्निंग. फाइन. सो आप देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके लेवल ऑफ लर्निंग जो है स्टूडेंट का वो बढ़ रहा है. सो कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो आपको किस तरीके से लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ती है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो दिस इज it will take I think few seconds to you कि आप देख पाए. The slide will come to you. Okay, I think the slide is visible to you. The first level is known, the first level is known as knowledge level. We call it as a knowledge level. Here the students are just familiar about the concept. उनको सिर्फ उस concept के बारे में पता है कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, और शायद आप बोल सकते हैं जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म फोर्स. स्टूडेंट जो है वो जो टर्म फोर्स है उसको सिर्फ डिफाइन कर पा रहे हैं. तो ये एक लेवल है जहां पर उनको सिर्फ उसकी बेसिक डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट के मेजर एलिमेंट्स के बारे में पता है, अंडरस्टैंडिंग अभी तक उस कॉन्सेप्ट की नहीं हुई है. द सेकेंड लेवल इज कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन मीन्स दैट स्टूडेंट उस चीज उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहा है ना, उसके मेजर पार्ट्स, या अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं
तो उसका इंटर रिलेशनशिप समझ पा रहा है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, से बायोगैस प्लांट आपने पढ़ाया, सो अगर बायोगैस प्लांट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसको वो कैसे इंटर रिलेटेड हैं, उसका प्रोसेस क्या है बायोगैस का, तो वो अगर बच्चा एक्सप्लेन कर पा रहा है, समझ पा रहा है, तो दैट वी टर्म्ड एज कॉम्प्रिहेंशन लेवल हैज बीन गेन। ओके, द थर्ड इज एप्लीकेशन। वो कॉन्सेप्ट को, जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे ने पढ़ा है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है या किस किस सिचुएशन में उसका एप्लीकेशन है और उसको वो आइडेंटिफाई कर सकता है। सो दैट इज द एप्लीकेशन लेवल। फाइन, सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, इवन से बायोगैस प्लांट के बारे में आपने पढ़ा है। सो बायोगैस प्लांट कहाँ अप्लाई हो सकता है, कैसे अप्लाई हो सकता है, किस टाइप की उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर उसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, द बेसिक फिनोमिनन विच इज टेकिंग प्लेस इन बायोगैस प्लांट, अगर आप वो किसी और सिचुएशन में भी अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट मे बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन लेवल of that particular content. Now next is the analysis and synthesis. Analysis means होता है segregating the major concept which you have learned. आपने जो भी concept पढ़ा है उसको आप सेग्रीगेट करके, मीन स्मॉल पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करके अंडरस्टैंड कर सके। कई बार ऐसे टॉपिक्स आप देखने को मिलेंगे कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको आप स्मॉल पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करते हैं और फिर आप उसकी रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं कि हाउ one part is related with the next part, and the above level is the synthesis. Synthesis means जो छोटे छोटे small parts में आपने जो टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ा है उसको सिंथेसाइज करके एज ए होल आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं। सो दिस इज एनालिसिस एंड सिंथेसिस। लाइक जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग पैटर्न्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, रिकॉग्नाइजिंग ट्रेंड्स, सो दैट इज गिवन इन एनालिसिस। जैसे आपने एक ही चैप्टर के अंदर 4 अलग अलग टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ा है। फाइन, सो हाउ दीज फोर्स दे आर इंटर रिलेटेड, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं आपने पढ़े हैं एक ही चैप्टर के अंदर, वो आपस में किस तरीके से लिंक्ड है। जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फोर्स का, उसमें आप मोमेंटम का भी के बारे में बताया जाता है। देन मोमेंटम के साथ आप देखिए डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो डेंसिटी और फोर्स कैसे रिलेटेड है। सो फोर्स जब आप पढ़ते हैं तो आप प्रेशर के बारे में भी पढ़ते हैं, सो प्रेशर और फोर्स कैसे रिलेटेड है। सो दीज आर हाउ यू आर, जो आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, जब आप उनको असेंबल करते हैं तो आप किस तरीके से उसको समझते हैं। सो दैट इज एनालिसिस एंड सिंथेसिस। एंड द लास्ट, yeah, yes, yeah, yes, हाँ, ये सब दैट कम्स इन द कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आप उनके टाइप्स की बात कर रहे हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। सो अगर आप टाइप्स बताते हैं या उसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो वो आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन में। इज इट क्लियर? नाउ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेनमेंट इज इवैल्यूएशन, और जिसको हम नाउअडेज दिस टर्म इवैल्यूएशन इज I think new that taxonomy has been coined, जिसमें evaluation को creativity से replace किया गया है। Fine. So in some books you may find the highest peak level is the evaluation, and in some books you may find the creativity is the highest level of attainment in the cognitive domain. Now here you can see that basically use something written over here: assessing theories, comparison of ideas, evaluating outcomes, solving, judging, recommending and rating. Now this is highest level of learning, because now at this point you are able to formulate your own ideas basically, है ना। आपके जो खुद के आइडियाज हैं वो किस तरीके से आपका जो लर्निंग हुआ है उस कॉन्सेप्ट को लेके आप उसको कैसे एसिमिलेट करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है उससे आप कैसे डील करते हैं।
फाइन। जैसे आपने कोई ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फाइन। नाउ ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट के बारे में जब आपने पढ़ा है, सो देयर में बी सम सिचुएशन इन योर लाइफ जहां पर आप अपने जो आपका लर्निंग है उससे रिलेट करके आपने उसको एसिमुलेट किया है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो देयर माइट बी 10 डिफरेंट लॉज विच यू हैव लर्न, बट उन सब लॉज को आप एग्रीगेट करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो यू आर इवेल्युएटिंग द सिचुएशन एंड देन you are drawing some solution from that situation. So that is how highest level is। और यहाँ पर creativity word यही है because human mind क्या है, जो भी learning होती है उससे अपने खुद के ideas को create करता है। You will be in a situation to create something new or to bring some new ideas to that particular learning। आपका जो भी learning हुआ है उससे आप कुछ खुद का अपना consolidated कुछ new creativity ला सके। So this is highest level of cognitive domain। Now basically हम जब educational objectives frame करते हैं तो ये different levels के according ही frame करते हैं educational objectives। लेकिन school में आप देखिए basically if you talked of knowledge level, comprehension level एंड एप्लीकेशन लेवल के ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। बाकी एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हम बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं बिकॉज उनको एक क्लास में अटेन करना और उनको इवैल्यूएट करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। सो इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स दैट स्टूडेंट usually or the teacher usually frames educational objectives of the level knowledge, comprehension and application। Fine, at least ये 3 level के तो objectives होने ही चाहिए। Fine, so now how will you come to know कि ये जो educational objective है ये knowledge level का है या नहीं? The question is, आपको ये कैसे पता लगेगा कि आप जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं वो नॉलेज लेवल का है या कॉम्प्रिहेंशन लेवल का है या एप्लीकेशन लेवल का है या किसी और लेवल का है? फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट। हमने एक लिस्ट क्रिएट की है एंड दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। वो काफी बड़ी लिस्ट है जिसमें कि आपको एक्शन वर्ब्स लिस्ट किए हुए हैं कि नॉलेज लेवल के लिए ये एक्शन वर्ब्स यूज होते हैं। So that list I'm going to post you in the आपका जो फाइल्स वाला इसमें ऑप्शन आता है जहां पर हम बाकी की पीपीटीज को भी ड्रॉप करते हैं, वहां पर मैं आज आपको दूंगी। एंड लेट मी ट्राई, अगर मेरे अभी मैं उसको शो कर पाती हूँ तो मैं देखती हूँ अगर मेरे डाउनलोड्स में अभी अवेलेबल है तो। एंड आई थिंक यस इट इज देयर। Just it will take 2-3 more seconds to show you। Okay, meanwhile it will come। See, knowledge level के जो कुछ action verbs हैं इसमें दिए जैसे define, describe, identify, label, list, match, name, define, reproduce, select and state। See, sometime you may find that कि कुछ action verbs आपको in more than one category or in more than one level में भी देखने को मिलते हैं, but don't worry about that। that basic आपका framing जो है एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स का उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्शन वर्ब यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक डायग्राम बनाया है, यू हैव ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। आप एक केमिस्ट्री लैब में ऑक्सीजन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फाइन। For that there is one diagram। Now in that particular diagram you have to label the diagram, that student will be able to label the diagram of प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने जो सेटअप उसमें तैयार किया है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगा, कहाँ पर टेस्ट ट्यूब होगा, कहाँ पर पिपेट होगा। सो यू नीड टू लेबल द ऑल द मेजर पार्ट्स, फाइन। सो दैट इज लेबलिंग। So this may be the one objective that suppose a student has drawn a water cycle। बच्चे ने एक वाटर साइकिल को ड्रॉ किया है और आप चाहते हैं कि बच्चे उस वाटर साइकिल को लेबल कर सके। उसमें जो लेबलिंग पार्ट है दैट इज अ वेरी लोअर लेवल ऑफ
अटेनमेंट, सो उसको हम नॉलेज लेवल में ही कंसीडर करते हैं. सो लिस्टिंग, जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट द एग्जांपल्स ऑफ say say the list, student will be able to list the example of fruits. So fruits के example अगर बच्चे को आप expect करते हैं कि वो list down करे तो उसमें वो लिखे. Student will be able to list the examples of say heat effect. हीट इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, अगर बच्चे उसके एग्जाम्पल्स को लिस्ट कर पाते हैं, दैट विल कम. आई थिंक कैन यू रीड दिस स्लाइड? क्या आप रीड कर पा रहे हैं? Yes, ma'am. और इज इट Yes, और यू ma'am. एक्सपैंड? Yes, ma'am. ओके. और इफ यू कांट रीड, जस्ट एक्सपैंड विद योर हैंड. अगर आपका हाथ से, मोबाइल में अगर आप देख रहे हैं तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं स्क्रीन को. फाइन. सो these are the list. Knowledge level is given, comprehension level is given, then application level is given, then analysis level, and synthesis level, and evaluation level. So all the levels are given over here. And आप देख सकते हैं हर एक टर्म जो हम यूज करते हैं या जो एक्शन वर्ब यूज करते हैं उसका गुजराती में उसको किस शब्द से हम किस शब्द से उसको लिखते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है. सो स्टूडेंट्स जो गुजराती मीडियम के हैं उनको तकलीफ ना हो इसलिए उनका ट्रांसलेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ये Ma'am, Hello? sorry to Slide interrupt. Screen is not visible. स्लाइड स्क्रीन नहीं आ रहा है? जस्ट अ मिनट. नहीं मैम. ओके, आई थिंक स्क्रीन इनविजिबल हो गया है. एक मिनट बेटा. हेलो. Hello, just a minute beta. I am showing the screen. Once again, I am retrieving. ओके. Just a minute. I think now you can see again. Yes. यस मैम. Yes, ma'am. Okay, dear. Okay. I think screen sharing बंद हो गया था बीच में. It may happen. Now you can see that there are different levels of action verbs. So आप अलग अलग level के action verbs जैसे there may be action verb create or design, explain, generate, modify, organize. So ये सब एटलीस्ट जब आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप नॉलेज लेवल का क्रिएट कर रहे हैं या एप्लीकेशन लेवल का क्रिएट कर रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हम वर्ड यूज करते हैं जिसको कि हम कॉम्प्रीहेंशन लेवल बोलते हैं. सो कॉम्प्रीहेंशन लेवल हो या अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, दैट इज अ सेकंड लेवल. इट हैज द सेम मीनिंग. सो आपको एक्शन वर्ब्स याद होने चाहिए तभी आप फ्रेमिंग अच्छी कर पाएंगे. Okay, so it is expected at least from each category आपको 10 action verbs याद हों. So it will help you in framing the educational objectives. So this is one thing. Second thing मैंने आपको बताई कि इनका जो translation है गुजराती में वो भी दिया गया है ताकि जो students गुजराती मीडियम में लिखना चाहते हैं उनको action verbs मिल सकें. And now I'm seeking, because कल मैंने आपको कुछ examples, illustrations already दिए हैं, तो मैंने आपको बोला था कि आप कुछ educational objectives जरूर लिखेंगे. So आप में से जो भी student लिख के लेके आया है वो at least any one of you first start, ताकि हमें पता लग सके कि आपके educational objectives जो आप लिख रहे हैं वो सही direction में हैं कि नहीं. Are they correct or not? So please state your educational objectives which you have written. Ma'am, this is Kruti. Smruti. Okay, Smruti. No, ma'am, Kruti. Yes, ma'am. So Kruti, regarding, yes, ma'am. Regarding the Yes. topic of nutrients,
Okay. The three educational objectives are: first, define nutrients; then second, list out the different types of nutrients; and third is Okay. write the source of each of these nutrients. Okay. Now, because this topic deals with science subject, may I find some more students to improve these educational objectives. आपने जो 3 educational objectives अभी बताए, दूसरे student भी प्रयास कर सकते हैं. This is not a hard topic कि आप इन educational objectives को कैसे, इसमें क्या mistake है या इसको आप improve कैसे कर सकते हैं. Kruti, nice. You have taken a nice example so that rest people can also join. Now, this platform is open for the rest of the student. How we can improve these educational objectives. Kruti, can you repeat again so that rest people either they can write or they can regain? Yes, ma'am. The first one is define nutrients. Then Okay. second one is list out the different types of nutrients. And third one is write the source of each of these nutrients. Okay. Now, students tell. Then also include deficiency nutrients. Yes, आप एक और Deficiency से एजुकेशनल आप ओके क्योंकि मैंने 3 ही ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए बोला, सो दैट माइट बी द रीजन कि इन्होंने 3 पे स्टॉप किया, बट यू कैन ऐड सम मोर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. हु इज सेइंग? Ma'am Kalyani है. Kalyani. Okay, Kalyani, what you will write? Ma'am like importance, basic importance क्या होता है and like deficiency. ऐसे नहीं बोलना, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना. You have to frame the Okay. education objective. You have to state it. Okay, like what is the importance of nutrients and what are the What is it? नहीं नहीं ऐसे नहीं है. क्या आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कभी स्टार्ट वर्ड से होते हैं? Remember, you cannot write an educational object. You are not posing question. आप क्वेश्चन पोज नहीं कर रहे हैं बच्चों को. यू आर राइटिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करने का एक तरीका है. Yes, Right, Ma'am, हम state word भी use कर सकते हैं. एक anyone. Yes. Ma'am, Preeti here. हाँ प्रीति. Describe the sustainable development and illustrate with some examples. Is it right, ma'am? आप ये किस टॉपिक से बोल रहे हो? Is it related with nutrients? No, ma'am, no. No, let us complete this discussion, then we will go to the sustainable development next topic. Okay. Okay, ma'am. Preeti, we will come to you, but let us Okay, ma'am, complete okay. this discussion because knowing what my student is understanding is important to me, है ना? जो आपने लिखा है उसको Yes, improve yes, ma'am. उसको improve करना ज्यादा जरूरी है. See, when you are framing the educational objectives, your first statement is always clear. That is, students will be able to. वो लिखना बहुत जरूरी है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना? सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, नंबर 1 इन्होंने बोला डिफाइन न्यूट्रिएंट्स. फाइन. She is expecting after this class student will be able to define. So ये किस लेवल का ऑब्जेक्टिव है? May I know from you? Knowledge. Yes, that student, see किसी को समझ में आया या नहीं वो हमें नहीं पता, but if the child is, अगर किसी बच्चे ने उसको याद करके या रट के लिखा है तो at least he is knowing, or at least the child is knowing the definition. Fine. So वो अभी तक उसके सिर्फ knowledge level तक है. That student is able to define या state the definition of nutrients. दोनों ही हो सकते हैं. ठीक है? या तो आप लिखोगे student will be able to define nutrient, या फिर आप लिखोगे student will be able to state the definition of nutrients. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What was the second objective? Student will be able to
आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या लिखा था आपने? List out the different types of nutrients. हाँ, स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो जो भी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी को लिस्ट कर सकेगी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फाइन, सो दिस इज सेकंड इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक लिखा है आपने। एंड व्हाट वाज द थर्ड? Write the source of each of these nutrients. Okay, students will be able to write the sources of nutrients of each type. अभी each type की जगह पर it is better to specify the type here, क्योंकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में आप अगर स्पेसिफाई करें कि कौन कौन से सोर्सेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, इट इज बेटर। जैसे विटामिन की बात कर रहे हो, मिनरल्स की बात कर रहे हो, किस चीज की, है ना, तो अगर आप उसको लिस्ट कर सकते हैं तो इट इज बेटर। So that is more specific and precise. Is it okay? Yes, ma'am. हाँ, that is the meaning of, and अगर आप sources की आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी at least 4 different और 5 different sources अगर आप वो देते हैं तो वो precision आ गया। वरना अगर एक स्टूडेंट है जिसने केवल एक सोर्स ही लिखा है और एक स्टूडेंट है जिसने 5 सोर्सेस लिखे हैं, तो हाउ विल यू इवैल्यूएट? फाइन, सो एटलीस्ट हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट के लिए स्टूडेंट 4 या 5 एग्जांपल्स या सोर्सेस बता सके, वो अगर आप लिखते हैं देन इट इज मोर प्रिसाइज। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes. So this is how you have to frame the educational objectives. Now let us come to the second point. Yes, yes, Deepak here. yes, And it yes. will be done importance of nutrients. And, Yes, this could be the next educational objective. जब आप एक डेफिशिएंसी का भी एक एग्जांपल एक और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए बोला, लेकिन अगर आपकी क्लास में यस आप एक टॉपिक न्यूट्रिएंट के ऊपर सपोज यू आर फ्रेमिंग 10 डिफरेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बट यू हैव Yes. टू सी हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स यू आर एबल टू कंप्लीट इन ए क्लास। सो आप अगर 2 क्लासेस में या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं तो आपके 2 अलग अलग बंच बनाइए आप कि दिस इज फॉर फर्स्ट क्लास, yes, ma'am. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो बहुत ज्यादा एक्साइट होके ऐसा भी नहीं है कि आपने 15 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिख डाले हैं, यस, बट ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत कम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जाएं। ट्राई टू बी इन ए बैलेंस सिचुएशन कि एटलीस्ट 2-3 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो मिनिमम होने चाहिए। देयर मे बी अ वेरी फ्यू इंस्टेंसेस कि आप एक ही एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्लास में जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, but it is usually found at least you are achieving 2-3 educational objectives. Is this discussion clear to my student? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But yes, it is very important. It is very important that you should be in a situation कि आप multiple means बहुत सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करें। जैसे एक और स्टूडेंट ने अभी ऐड किया था, स्टूडेंट विल बी एबल टू write the significance of nutrients to the children or to the people. लोगों के लिए न्यूट्रिएंट्स का महत्व क्या है, लोग उसको जान सके, ये भी एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नाउ स्टूडेंट विल नो द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, ये अगर आप नो वर्ड यूज करते हो तो ये चला जाएगा आपके जनरल ऑब्जेक्टिव में। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये चला जाता है आपका टॉप, ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जाएगा आपका जनरल ऑब्जेक्टिव में। इज दिस क्लियर? हाँ, अगर आप ऐसा लिख, हाँ, यस। नाउ आप इसीलिए हम बोल रहे हैं अंडरस्टैंड वर्ड या नो वर्ड आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में ना लिखें। ओके, ओके, नेक्स्ट इज एक एग्जांपल यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने दिया था रिगार्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुड यू रिफ्लेक्ट अपॉन, आप वापस से उसको स्टेट करेंगे बेटा? हाँ, बताइए। Yes, student will be able to define sustainable development and state 2-3 examples.
ओके, नाउ सी पहली इसमें मेजर मिस्टेक क्या है आप बताएंगे? मैंने डिस्कशन में बताया आपको आज कि किस टाइप की ऑब्जेक्टिव जब आप बताते तो वो क्लियर होने चाहिए पहली चीज, और क्लियर मीन्स डुप्लीकेशन या क्लबिंग नहीं होना चाहिए। आप क्लब नहीं करेंगे, आपने दो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मर्ज करके एक में ही कन्वर्ट कर दिया है ना। आपने पहला बताया हाँ हाँ, राइट 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 है ना। राइट। हाँ, Yes, यस, yes, वापस got it. वापस से बोलिए आपने जो बोला था। Student will be able to define sustainable development हाँ, and and give some examples। give some लेकिन examples. हाँ, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक को क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा डेफिनेशन है? Yes, ma'am. Sustainable development is नहीं, क्या saving the resource. Dear, Ma'am? I know the meaning of sustainable development, but my question is, अगर स्कूल टेक्स्ट बुक में कोई डेफिनेशन दिया है तो ही आप Yes, वर्ड डिफाइन यूज कीजिए। अगर किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है तो आप डिस्क्राइब या एक्सप्लेन जैसे एक्शन वर्ब्स को यूज करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, ये ma'am. भी चीज ध्यान रखनी है। देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जिसका डेफिनेशन होता ही नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको कि हम एलोबरेट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, उसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा आपको, है ना। कोई प्रोसेस है या कोई फिनोमिनन है जिसको आप एक्सप्लेन करते हैं। सो आप एक्शन वर्ब यूज करते टाइम ध्यान रखिए कि क्या ये टर्म को डिफाइन किया गया है टेक्स्ट बुक में या एक्सप्लेन किया गया है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द एक्शन वर्ब। दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंडली, जैसे आपने बोला डिफाइन भी करो और फिर उसके इलस्ट्रेशंस भी दो, या इस तरीके से दो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव Merge को नहीं मर्ज नहीं करना है, उसको स्प्लिट कीजिए, है ना। उसको दो अलग अलग लिखिए। पहला लिखिए आफ्टर दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन that sustainable development, and second give illustrations related to sustainable development। तो आपने एक और दो करके आपने दो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, है ना। या डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के कितने पॉइंट्स हैं, आई थिंक 16-17 कितने पॉइंट्स हैं उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सो वो बच्चे उस, है ना। तो अब आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती हैं और बच्चों को पता है। So this is how you have to keep in mind while writing the different educational objectives। So application level तक एप्लीकेशन लेवल के भी क्वेश्चंस होने जरूरी हैं, है ना। सो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपके एप्लीकेशन लेवल में जाते हैं। Fine. So in some subject like in mathematics and in science, application level की educational objectives बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन if you go for literature जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, वहां पर एप्लीकेशन लेवल के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाना चाहिए और थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट यू शुड बी मोर केयरफुल इन ड्रॉइंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच लेवल। सो may I know from any other student who want to give some more illustrations of educational objectives? Ma'am, Yes, Would you ma'am. all- hello, ma'am. Yes, yes. Ankit here. Ankit. Okay, Ankit, state. Suppose I want to teach my students English in grammar में मैं टेंस पढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे कौन से टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाए हैं? हेलो। टेंस के लिए इंग्लिश में टेंस पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश ग्रामर में से। ओके ओके तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेंसेस। आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड वर्ड सेकंड कैसे आएगा? आपने फाइंड, पहला ही हम फाइंड भी स्टेटमेंट लिख बोला। सकते हैं, फाइंड लिख सकते नहीं, हैं। दो अंडरस्टैंड लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो आपको अंडरस्टैंड लिखना ही नहीं है। एज ए एक्शन वर्ब आप अंडरस्टैंड लिख ही नहीं सकते। कैन वी राइट फाइंड? कैन वी नहीं, Find. आप उसको फ्रेम कीजिए कि क्या होगा। आप मैं- वापस से फ्रेम कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेंसेस। फाइंड क्यों, आप स्टेट द डिफरेंस बोलिए ना। फाइंड कैसे सुटेबल होगा बेटा? स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन
टेंसेस टेंसेस जो कौन कौन 12 से टेंसेस 12 जो टेंस है हमारे सिंपल कंटिन्यूअस वो सब टेंसेस में वो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस नहीं आएगा। देखो डिफरेंस करते हैं तो आप डिफरेंशिएट करते हो, है ना। आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कैसा होगा? द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट द टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। आइडेंटिफाई आ सकता है? आइडेंटिफाई आ सकता है, यस। स्टूडेंट विल वो बी एबल टू second point है। आइडेंटिफाई द टाइप। फाइंड Identify, नहीं हाँ। आएगा उसमें, है ना, है ना। तो ओके आप मैम। इसीलिए हाँ, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? आइडेंटिफाई द टेंस। ओके, थर्ड वन इज ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू देयर मदर टंग्स। which sentence from which language to which language you are going? अगर इंग्लिश में सेंटेंस मिलेगा तो वो अंडरस्टैंड कर पाए कि वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। मदर टंग से इंग्लिश में जाना है कि इंग्लिश से मदर टंग में जाना है? इंग्लिश में से अगर वो लिटरेचर वो पढ़ रहे हैं तो उनके चैप्टर्स में जो सेंटेंसेस आएंगे वो Okay, अपने लैंग्वेज में okay, ट्रांसलेट करके। okay, okay. Student will The be last able to one, translate the English. The student will be able to translate the sentences in to their mother tongue. अब mother tongue is a broad. अभी क्लास में आपके कोई बच्चा गुजराती हो सकता है, कोई एसएमीज हो सकता है, कोई मराठी हो सकता है, कोई बंगाली हो सकता है। तो इट इज बेटर टू राइट द लैंग्वेज दैट इज मोर प्रिसाइज, है ना। आप क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। अभी कोई किसी का मदर टंग गुजराती और किसी का तेलुगु है, तो आप कैसे आप तेलुगु में इसको ट्रांसलेट करवा रहे हो? नहीं करवा रहे हो, है ना। सो प्रिसीजन जो है, लेवल ऑफ प्रिसीजन यही बोलता है कि आपका जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइन हो कि आप क्या चाहते हैं बच्चों से। okay ma'am. Okay, The I last think one is yes. use it in speaking. Okay, student will be able to use the tenses in framing sentences in English, है ना। हाँ सही। हाँ, यूज कर सके बच्चा टेंसेस को है इन द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में उसको वो टेंसेस को वो यूज कर सके सेंटेंस फ्रेम करने के लिए। सो दैट कैन हैपन, वो हो सकता है, ठीक है। तो वो आप बच्चे को टेस्ट कर सकते हैं कि हेलो, प्लीज म्यूट योर माइक। हेलो student, I am able to notice you. So fine. Today's class helps me a lot to understand कि आपका level of learning क्या है, and with this kind of discussion it will also help you कि आप कहाँ mistake कर रहे हैं। So आप जब तक आप बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, हमको नहीं पता लगेगा कि आपका learning कैसा है। Fine. So I am closing this class right now, and we will meet now on coming Monday. Fine. Coming Monday अब हम मिलेंगे आपको, और till then take care of yourself. So I am closing this class. Fine. So hope you will understand. मैं ये list जो है action verbs की आपको दिखाऊंगी, and then you can see that what are the different action verbs. Now अभी जो मैंने एक चीज बताई कि cognitive domain की मैंने बात आपको बताई है, similarly affective domain and psychomotor domain के भी levels होते हैं, जिसको कि अभी हमने चर्चा में नहीं लेके आए हैं। So वो levels को मैं जो है PPT में मैंने उसका शेयर किया है, पिरामिड जिसको बोलते हैं, हायरार्की, so that you can go through. But cognitive domain का थोड़ा important था because हम action verbs को use करते हैं in framing the educational objectives. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. you can have a view. अगर आप मुझे 1 या 2 मिनट दें तो मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मैं वो भी आपको दिखा दूं। Just hold. Yes, ma'am. Just a minute. मैं दिखाई देती हूँ so that मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि मैम ने दिखाया नहीं और सीधा सीधा बोला कि आप देख लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। Just a minute.
This is the PowerPoint. Okay, this is affective domain. Abhi aa jayega beta. It will take, I think, 2-3 seconds. Can you see this slide? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just expand with your hands if it is possible in your mobile phone. The lowest level is giving as receiving or attending, then responding, then valuing, then organizing and then characterizing. So ये affective domain है. Affective domain का मतलब अगर आप simple देखें तो it is related with your feelings and emotions. जैसे आप कोई chapter पढ़ के आपके emotions में जो change आता है, that is again that change is a gradual process. धीरे 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 देखो, आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आपने कोई पैट्रियोटिक पोएम पढ़ी है तो फर्स्ट थिंग इज आपको उस पोएम को पढ़ने के बाद धीरे धीरे आपके अंदर कुछ इमोशंस के अंदर आप चेंज फील करते हैं, है ना? तो दैट चेंज इन द इमोशंस ऑल्सो टेक्स इन डिफरेंट लेवल्स, है ना? कुछ लोगों में बहुत ज्यादा चेंज आता है, कुछ में कम आता है, और उसका लेवल ऑफ अटेनमेंट जो चेंजेस होते हैं वो भी अलग अलग लेवल के होते हैं, जो कि इस पिरामिड में दिखाया है. नाउ सेकंड इज साइकोमोटर डोमेन. नाउ दिस इज थर्ड काइंड ऑफ डोमेन जिसमें आप देखेंगे साइकोमोटर स्किल्स मतलब होता है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है. जैसे आप देखिए स्टूडेंट, जब कोई स्टूडेंट या इफ एनी पर्सन स्टार्ट ड्राइविंग, आप जब ड्राइविंग सीखते हैं तो आपका हाथ कैसे शेक होता है इनिशियली, है ना? आपका हैंडल पर आपका हाथ जो है वो शेकिंग होता है इनिशियली, बट एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ बात करते हुए भी जा रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं है आप हैंडल पर, बट इट कंट्रोल्स, इट मैनेजेस योर ड्राइव. इज इट ओके? सो दैट इज द लेवल ऑफ योर, आपकी साइकोमोटर स्किल्स इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप बात करते हुए भी ड्राइव कर सकते हैं. डिड यू गेट माई पॉइंट? So level of attainment of in psychomotor skills is also being is being recognized. See, आप देखिए कभी कभी आप मैकेनिकली काम करते हैं. मैकेनिकली काम करना मीन्स जैसे अभी आपकी मम्मी है चपाती बनाती हैं, शुरू में जब आपकी मम्मी ने चपाती बनाना सीखा होगा ना, तो शी मस्ट बी वेरी मच कॉन्शियस कि मुझे यहाँ से गोल करना है, यहाँ पतला करना है, यहाँ मोटा करना है, टाइम से सेकना है. लेकिन एक टाइम के बाद वो स्किल इतना डेवलप होता है कि आपकी मम्मी गाने सुनते हुए भी, आपसे बात करते हुए भी, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए भी उनकी चपाती गोल ही बनती है और एकदम सॉफ्ट बनती है. उनको कहना नहीं पड़ता, उनको कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डालना पड़ता उस चीज के लिए कि मैं ये काम कर रही हूँ, वो मैकेनिकली अपने आप होता चला जाता है. सो उनके साइकोमोटर स्किल्स उस लेवल तक डेवलप हो चुके होते हैं. डिड यू गेट माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes. So psychomotor skills का भी जो level of attainment है, it goes from reflex movements, then basic fundamental movements, then perceptual, then physical activities, then skilled movements, and then non-descriptive communication. That is non-descriptive communication means कि अब कोई instruction की जरूरत नहीं पड़ती, they goes by their own. So ये डिफरेंट लेवल्स हैं. लेकिन जब हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं फॉर लेसन प्लानिंग, मोस्टली वी टेक केयर अबाउट कॉग्निटिव डोमेन. हम कॉग्निटिव डोमेन को ही ज्यादा ध्यान में रखते हैं, और रिलेटेड विद अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन हम यूजुअली नहीं लिखते. लिखना चाहिए बट यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि आपकी टीचिंग स्टाइल इस तरीके की होती है कि आप कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा अचीव करते हैं. सो आई थिंक टुडेज क्लास विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द 3 काइंड्स ऑफ डोमेन्स, है ना? और ये डोमेन्स किसके अंडर में आती हैं? दे आर अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि हमारी लर्निंग किस किस टाइप की होती है. फाइन. एंड इट इज गिवन बाय ब्लूम्स, so that is how it is known as Bloom's taxonomy. So I'm now closing this discussion. I will give this PPT to you also so that you can read, and immediately I will share the list of action verbs. So
Till Ma'am, yes, yes, and there is yes. some doubt regarding that online method selection. Ma'am, like Google हाँ. form तो fill up कर दिया है, but online हमें कैसे करना है प्रोफाइल में जाके? ऑनलाइन के लिए एक्चुअली सर से बात हुई थी मेरी. सर बोल रहे थे आपने आपका जो जैसे एडमिशन फॉर्म आपने फिल किया था ना, उस तरीके से आपका खुद का अकाउंट है. आई थिंक यू हैव योर ऑन लॉगिन अकाउंट. आप लोगों को Yes, पता ma'am, है digital आपको? MSU account. डिजिटल. हाँ हाँ. हाँ. तो वहां पर आप सर्च कीजिए. उसमें ऑप्शन में जाके कहीं ना कहीं मेथड सिलेक्शन से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेगा, और वहां पर आपको लिस्ट भी होगी टीचिंग मेथड्स की. उसमें जाके आपको सिलेक्ट करना है. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट. लेकिन कुछ और अगर है तो मैं सर से बात करूंगी कि सर आप प्रॉपरली गाइड करें हमारे स्टूडेंट्स को. सो हाँ लेट मैम मी प्लीज. आस्क, है ना? यस मैम, क्योंकि आज देखा पर मिला नहीं ऑप्शन, हाँ सो प्लीज सेम ही मैम आस्क. ठीक है, हमने ठीक देखे है. बट नहीं मिले प्रोफाइल में मैं जाके. ऑफिस में, हाँ मैं ऑफिस में ट्राई करती हूँ इस चीज को सॉर्ट आउट करूँ, और आपको यहाँ से आई विल कम्युनिकेट टू यू. फाइन. हमें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के स्टेप्स मिल जाएंगे मैम तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. Yes, ma'am, step. हाँ. I will try my best to help you out. Fine, don't Thank you worry. so I much, will ma'am. try. थैंक यू I मैम. will try my Thank you, best. ma'am. Fine. Huh? Thank Okay, you, dear. ma'am. Thank you. Okay. ma'am. Good day to all. Good day, all of you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good day, Okay. ma'am. Now you can leave this meeting so that